आप ले आइए जरा मैनेजमेंट को स्क्रीन पे। श्रीराम प्रॉपर्टीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुरली एम हमारे साथ जुड़ते हुए। मुरली सर, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अच्छा, सर से बातचीत करूं उससे पहले क्विक स्नैपशॉट दे देता हूं। ये जो श्रीराम प्रॉपर्टीज है, दक्षिण भारत की एक लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर है। मैं आने से पहले सर के पढ़ रहा था, शुरुआत हुई थी 2000 में बंगलुरु से, उसके बाद कई सारे साउथ इंडियन सिटीज, चेन्नई, कोयंबटूर, विशाखापट्टनम में स्प्रेड आउट हुआ। इवन कोलकाता में इस कंपनी की प्रेजेंस है, पर लार्जली दो मार्केट्स हैं, बेंगलुरु का और चेन्नई का, जहां से ज्यादातर रेवेन्यू, ज्यादातर ट्रैक्शन, ज्यादातर प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे आपको। और ये कंपनी वो अफोर्डेबल और मिड मार्केट सेगमेंट में फोकस करती है। ये आईपीओ खुलने जा रहा है 8 दिसंबर को। मैं इसके आगे की डिटेल्स बताता हूं, पहले एक बार सर मुरली सर से बातचीत कर ली जाए। मुरली सर, हाय, गुड आफ्टरनून, कांग्रेचुलेशंस, आप लोग जल्द प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। सर, मुझे पहले तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और बताएं। ये कंपनी करती क्या है, किस साइज ऑफ प्रोजेक्ट्स इस समय करेंटली अंडरवे हैं, क्या फोकस कंटिन्यू करेगा साउथ मार्केट में, क्या फोकस कंटिन्यू करेगा अफोर्डेबल मार्केट्स में, या कुछ बदलने की तैयारी? Shriram Properties is one of the largest real estate developer in the country, having presence in Bangalore, Chennai, Calcutta, Coimbatore, and Vizag. These 5 cities we have presence. We have a very large presence. In each market we operate, we are in the top 5 developers in the each market. We are predominantly positioned in mid-market and affordable housing segment. That's our primary focus. And 3 years ago, we smelt an opportunity that consolidation is going to play a major role for large developers like us. Hence, we built an organization for doing about 5 to 6 million square foot of pre-sales. And last 3 years, from sub 1 million square foot sales to about 3.5 million square foot average last 3 years, we have been able to deliver. And we expect the growth to become much, much bigger in the near future. The industry is going to throw a lot of opportunity. अच्छा, मैं कह रहा था वेडनेसडे को खुलेगा, फ्राइडे को बंद होगा। 113 से 118 रुपए का प्राइस बैंड, और आईपीओ के जरिए 600 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की तैयारी। मुरली सर, ये जो आप फ्लैट्स बेचते हो, ये नॉर्मली टिकट साइज क्या होता है जो आप प्रॉपर्टीज बेचते हो, फ्लैट्स बनाते हो, फ्लैट्स बेचते हो उनका? Mid segment, our definition is about 45 to 80 lakhs, and affordable is about 25 to 45 lakhs is the affordable one. And we felt right from the inception stage, there are a few things we did. One is that we should be in the mid-market and affordable housing segment, where we believe in our country today, the demand for this segment is likely to be, much, much longer period of time because of the growing urbanization and aspiring middle class population and the increase in middle class population today. Hence, we thought we should be focusing on mid-market and affordable housing segment, which will continue to give long-term growth. One. The second one, we also looked at asset-light model right from the day one. We looked at real estate could be asset-heavy business. Hence, we should create a model which may not need a lot of capital. Hence, we moved into asset-light model right from the inception stage. And last 3 years' time, we have gone into this model, development management model, which proved to be extremely, extremely successful. So we built a very nice portfolio and development management model, close to about 1/3 of our portfolio and development management model, which is doing phenomenally well today. And it's likely to grow further and further. Interesting. अच्छा, ये जो 600 करोड़ रुपए श्रीराम प्रॉपर्टीज मोबिलाइज कर रही है, इसमें 350 करोड़ रुपए ओएफएस है। ओएफएस है करंट इन्वेस्टर्स के द्वारा, जिसमें साबरे होल्डिंग्स, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, टीपीजी एशिया, डब्ल्यूएसआई मॉरिशस इन्वेस्टर्स और कुछ और सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं। और बाकी का जो 600 करोड़ में से 350 हटा दीजिए, जो 250 करोड़ रुपए है, वो फ्रेश इशुएंस है। तो मुरली सर, ये इस समय श्रीराम प्रॉपर्टीज का डेट स्टेटस क्या है? कितना कर्ज आपकी बुक्स पर है, और आप किस हद तक इस डेट को इस आईपीओ की प्रोसीड्स के थ्रू रिड्यूस करोगे? ये फ्रेश इशुएंस का इस्तेमाल क्या होगा? We'll be raising about 600 crores, out of which about 350 crores is secondary. Some of our existing shareholders are selling, and 250 crores is primary.
which will be essentially used for debt repayment, corporate purposes, and for growth. Currently, we have close to about 700 crores debt, out of which about 200 crores will get repaid, and we'll reach a debt equity ratio of 0.5 by end of fiscal 2022. अच्छा, एक जाते थे मुरली सर और सवाल, हाल फिलहाल में बहुत तगड़ा प्री सेल्स अपटिक देखने को मिला। क्या आप सजेस्ट फिगर्स, लेटेस्ट फिगर्स जो प्री सेल्स के हैं वो शेयर कर सकते हैं? किस तरह का डिमांड एनवायरनमेंट, किस तरह का मोमेंटम पिकअप हो रहा है बिजनेस में? दरअसल ये जानने में आसानी होगी। As I said, the last 3 years time we have done about 3.5 million square feet, and naturally we expect to grow much bigger. September 30th, we have done close to about 1.6 plus million square feet, and as you know that Q3 and Q4 is always, high demand absorption period. We sell roughly about 1 million square foot quarter. That's our end rate with which we do it. 80% of our ongoing is already sold today. चलिए मुरली सर, बेस्ट विशेस आपकी इस प्राइमरी मार्केट ऑफरिंग के लिए, और जब फिर अब लिस्टिंग हो जाएगी तब आपसे आगे के आउटलुक, आगे के फाइनेंशियल्स और आगे की ट्रेजेक्टरी पर डिटेल में बातचीत होगी। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए आज। तो एक साउथ इंडिया बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर आ रहा है प्राइमरी मार्केट्स में परसों से। ये कंपनी अफोर्डेबल मिड मार्केट सेगमेंट, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट्स पे करती है फोकस, और शायद ये इसकी आईपीओ कॉन्फ्रेंस रीजन हो सकता है, या वैसे भी आज नीरज वाजपेयी ने सुबह रियल एस्टेट स्टॉक जो बोले थे, आज रियल एस्टेट वैसे भी आज फोकस में है। खराब बाजार में रियल एस्टेट इंडेक्स अभी भी आपको हरे निशान में कामकाज करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, ब्रेक लेने का समय हो गया। ब्रेक पे जाते थे बता दूं, कल एक और आईपीओ खुलने जा रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए, तो खुलेगा परसों।